treatment. So when to suspect Guillain-Barré syndrome? सस्पेक्ट कब करेंगे? जब रैपिडली प्रोग्रेसिव बायलैटरल लिम्ब वीकनेस एंड सेंसरी डेफिसिट, हाइपोरिफ्लेक्सिया और अरिफ्लेक्सिया मीन्स absence of reflexes, facial or bulbar palsy, ophthalmoplegia and ataxia, corneal ulcers are also there. How to diagnose? So diagnostic criteria में symptoms भी आएंगे, then lab test आएंगे, CSF examination में elevated proteins and electrophysiological studies में myelination of the nerves we can check. So medication is a symptomatic treatment for fever, pain like that. Then antiviral treatment, antibacterial and hyperimmunoglobulin, injectable intravenous globulin. So Zika virus is also there. So it is a daytime bite by Aedes mosquitoes. Infection during pregnancy अगर हो गया तो बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं ब्रेन एंड आई में. सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है इन जिका. देयर इज आल्सो सेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन. जिका वायरस के सिम्टम्स में फीवर, कंजंक्टिवाइटिस एंड मसल पेन. ट्रीटमेंट, रेस्ट एंड फ्लूइड इनटेक एंड पैरासिटामोल. प्रिवेंशन, so by using mosquito net, full sleeves cloth during daytime and insect repellent you can use. So be lifestyle. Didi, can you continue with lifestyle and home remedies? Yes, sure. Before I start, I'll just chant once. Om Namo Pranavaarthaya Shuddha Jnanekam Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye. So we spoke about Guillain-Barré syndrome, which is very rare earlier. One in many people used to get it, children also. But now, because there is an outcome in Pune, especially we have discussed that for Pune people, and as it is spreading in other parts of the country also, it is helpful for them to know. That was a little medical background, but that is very essential because to understand when to go to doctor is very important. है ना? किसी को भी डॉक्टर के पास तब जाना है, नहीं तो ऐसे होता है कभी बुखार आ गया घर में पिंपरी खा लो, चलो थोड़ी देर सो जाओ, एक ओवर द काउंटर ड्रग ले लिया, कुछ क्रोसिन ले लिया या कुछ आयुर्वेदा ले लिया और फीवर को दबा दिया, है ना. वीकनेस है, आपको इतनी वीकनेस है, होते ही रहता है, खाना ठीक से खाओ. तो ये ऐसे अक्सर बोला जाता है. लेकिन जब हमने देखा है, जैसे हमने कोविड टाइम पे भी देखा, एकदम से स्प्रेड हो गया सब कुछ. तो जब ये स्प्रेड हो रहा है इधर, तो हमें खासकर ध्यान रखना है कि जितने भी सिम्टम्स बात किए, सिम्टम्स मतलब जो व्यक्ति को दिखता है, दूसरे खुद को भी पता चलता है और दूसरे को भी दिखता है. और सिम्टम्स दिखते हैं तो साइंस मतलब जो दूसरे को पता चलते हैं. तो सिम्टम जो है, समझो मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं ही बता पाएंगी कि मुझे हेडेक हो रहा है, कोई और नहीं बता पाएगा, है ना. तो ये जो सिम्टम्स है जो व्यक्ति को समझ में आते हैं, इसकी तरफ खास ध्यान होना चाहिए कि हमारे रोज के व्यवहार में, कुछ रोज की जीवन शैली में, रोज के अच्छे रहने में, स्वस्थ रहने में कुछ बदलाव आ गया. तो ये जो कुछ छोटा सा भी बदलाव आता है, एनी स्मॉल डिफरेंस इन द डेली पैटर्न ऑफ लाइफ, लाइक फीवर, हेडेक, फटीग, repeated weakness or long time weakness, this is not something which can get neglected. Okay, so it is very important to go to a doctor to see that and follow whatever advices and medication and treatment a doctor has given.
and a doctor is a qualified person. So you need to take help of the qualified person for that matter. Now we will touch upon the lifestyle patterns. So we have seen that care very elaborately in the previous slide. There are many things given in that slide, so I don't know whether you could grasp it or not. So one is the critical care. That means when everything becomes very severe, then a person goes to doctor and doctor takes care of that in a critical manner. That is ICU care, what we say. And treatment starts immediately. Because when does the treatment is required immediately? When a person is having excessive fatigue, excessive थकान जब हुई है, ठीक है ना? तो ये सारे लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है. और इसमें जो हमने 7वें नंबर में देखी है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, आजकल हर चौथे पांचवें व्यक्ति को इसमें से कुछ ना कुछ रहता है ना? आप पढ़ रहे हैं वो चोकिंग, कार्डियक अरिथमिया, इन्फेक्शन, ये हर पांचवें छठे व्यक्ति को इसमें से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है. तो अभी जो पीरियड हो चुका कोविड का और जीका वायरस का, ये सबका अभी भी थोड़े अंश में सब जगह फैलाव मजबूत है, ठीक है ना? ये सब जगह फैला हुआ है अभी भी, लेकिन बस कोविड का एक्सट्रीम फॉर्म अभी सर्दी खांसी तक आके रुक गया है. हजारों में एक केस को कुछ सीवियर हो रहा है अभी, ठीक है? तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर किसी को होते हैं तो इसको टालना नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो अब हम अच्छी जीवन शैली की तरफ जाते हैं. लाइफस्टाइल माने जीवन शैली, जो हम रोज का अपना जीवन बिताते हैं, किस ढंग से बिताते हैं, किस तरीके से बिताते हैं, उसको लाइफस्टाइल कहते हैं. एंड लाइफस्टाइल इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स, not even just eating, food habits, sleep habits, your breathing patterns, whether you are doing some exercise, some yoga or no. Or beyond that, it includes so many more things, like how you sit. Posture is one very important aspect these days. How much screen time you are spending. अभी हम स्क्रीन देख रहे हैं, हम 1.5 घंटा स्क्रीन देखेंगे, उसके बाद कितने लोग आंखें ऐसे बंद करके बैठेंगे बताइए? कोई भी नहीं करता है. या थोड़ा पानी का छिपका मारेंगे. We don't do that. Huh? So these are very small things that are to be added to lifestyle. So we will discuss that in detail. And home remedies, घर पे उपचार करना, ये हमारे पुरातन पद्धति से आता आ रहा है. पहले आयुर्वेदा घर घर में था. ऐसे ही बहुत सारे देश अपनी कुछ जीवन शैली के आधार पे होम रेमेडीज थी, ठीक है? तो आज हम इनकी बात करेंगे. अभी पहले लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया लोगों का. नाउ डेज पीपल सिट ऑन चेयर फॉर मिनिमम 8 to 10 hours, which is not advisable because human body is not made for that. Some people sit for 10 to 18 hours also. अब मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के ले रही हूँ, मैं संगीता जी भी मुझे दिख रहे हैं कुर्सी पे बैठ के ले रहे हैं. आप में से 99% लोग कुर्सी पे बैठ के सुन रहे होंगे, कुर्सी या सोफे पे या पलंग पे. कोई अगर इनमें से आप में से कोई जो फर्श पे बैठ के या आंगन में बैठ के सुन रहा है सुखासन में, तो बताइए. तो हमारी जीवन शैली ऐसे बिगड़ती जा रही है, ठीक है? तो सेडेंट्री में और क्या आता है? दैट वी आर नॉट वॉकिंग मोर, है ना? चलना कम हो गया है. Human body, they say in childhood it is 10 to 15,000. That includes running, cycling, all those activities. In a normal youth life till 50-55 years of age, minimum 10,000 steps of a moderate speed, not too fast, not too slow, a person should walk. And in elderly cases, which is beyond 65-70, they should walk minimum 5,000 steps a day to keep them going on the feet for a longer time. Okay. Now, how many of us are really walking that much? We are monitoring in our smartphones these days. We monitor all this, track all these things. But if you are not tracking, please do track your lifestyle now, especially the walking pattern. Are you walking evenly and for a longer time at a stretch? कहते हैं चलना कम से कम 25 मिनट, 20 से 25 मिनट के बाद मध्यम गति में जब हम चलते हैं समानता से, अच्छे तरीके से, तब उसके बाद शरीर में जो उसका इफेक्ट आना है अच्छा वाला, मतलब जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसका हमारे स्नायुओं पे और बाकी तंत्र मंडलियों पे उसका असर पड़ता है, वो 25 मिनट के बाद होता है, 20 से 25 मिनट के बाद. तो इतना तो बहुत कम लोग आजकल चलते हैं. तो अगर आपको सैर जाते हैं आप लोग सुबह, इफ यू आर गोइंग फॉर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स, मेक इट अ पॉइंट टू क्रॉस एटलीस्ट
30 minutes of walking, minimum 30 minutes of walking. And that would give you somewhere around 4,000 steps with a moderate speed. ठीक है, तो अगर आपने इतना चला है घड़ी लगा के, तभी आप कह सकते हैं मैं 4-5 हज़ार कदम चला हूँ दिन में, वरना नहीं. ठीक, तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. कुर्सियों पे जब हम बैठते हैं, सुबह से हम उठ के पहले कुर्सी पे डाइनिंग टेबल पे चाय नाश्ता लेना, इवन वॉशरूम को जाते हैं तो आजकल वेस्टर्न कमोड लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. ठीक है, जब हम हिंदुस्तानी कमोड यूज़ कर हिंदुस्तानी टॉयलेट यूज़ करते थे इंडियन स्टाइल वाला, तो उसमें नीचे जो बैठते हैं उससे बहुत परिवर्तन आता है. उससे पेट के लार्ज इंटेस्टाइन के जो दोनों तरफ के असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, खासकर उस पे बहुत अच्छा दबाव पड़ता था. मलासन कहते हैं उसको योगासन में. तो मलासन का नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि वो मल को बाहर निकालता है. ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूसली वेस्टर्न कमोड यूज़ कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है कि आप दिन में कम से कम 3 बार 1-1 मिनट के लिए मलासन में बैठें. आपके ड्राइंग रूम में, ऑफिस, कहीं पे भी आपको जहाँ होता है, मलासन आसन ज़रूर करना है. ठीक है, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. फिर और सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? आजकल घुटने के दर्द, पीठ के दर्द बहुत बढ़ गए हैं. इसकी वजह से भी लोगों का एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम सेडेंट्री हैं तो इम्यूनिटी शरीर की कम हो जाती है और इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेमिनेटेड वाटर, जैसे कि संगीता दीदी ने बताया कि पानी से के ज़रिए भी आ सकते हैं, हवा के ज़रिए भी वायरस आ सकते हैं. हाइब्रिड फूड मतलब मिक्स टाइप का जो खाना खाते हैं, जो एक दूसरे के साथ, इसमें हम बोलते हैं आयुर्वेदा में विपरीत तरह के अन्न जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ खाते हैं, तो इससे भी तकलीफ होती है. आजकल हाइब्रिड फूड में आ गया है. मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल छोटा सा. आई हैड बीन टू स्वामीनारायण टेम्पल इन गुजरात, एंड इन देयर फूड कोर्ट आई हैव सीन समोसा विद व्हाट डू वी टेक? चाय, है ना. कुछ तला हुआ खाते तो हम कुछ गरम पीते, या भजी खा ली तो काढ़ा पी लिया, है ना. तो देयर आई हैड सीन समोसा विद कोक, अभी उसको फोन डोसा विद कोक, एडवर्टाइजमेंट वाज देयर. सो दिस लाइफस्टाइल इज चेंजिंग विच इज नॉट गुड. एक आप तला हुआ खा रहे हैं, उसके ऊपर आप ठंडा पी रहे हैं, तो तेल और जम नहीं जाएगा क्या अंदर? ये सर बहुत अच्छा होता है, समझ रहे हैं ना. तो ये हाइब्रिड फूड का भी बहुत 2-3 तरह से हाइब्रिड. एक तो जो हाइब्रिड फल मिल रहे हैं आजकल, मतलब आर्टिफिशियल भी है, और जहाँ के अपने देसी है वो नहीं है, उसमें फ्लेवर आ गया दूसरा, या 2 फलों को मिला के खेती होती है तो उससे वो हाइब्रिड फ्रूट फूड, धान वगैरह सब जो हाइब्रिड बन रहा है. ठीक है, तो दिस इज अनदर वेरी डेंजरस फैक्टर विच इज स्पॉइलिंग आवर इम्यूनिटी. हमारे नानी दादी लोग जब गुजरे तब उनके दांत अच्छे थे, बाल अच्छे थे, और घने बाल थे, काले बाल थे, और वो चलते थे आखिर तक, सीढ़ियाँ चढ़ते थे. मैं बात कर रही हूँ 90 इयर्स प्लस वालों की. और आजकल 40 साल में घुटनों के दर्द, पीठ के दर्द आ गए हैं. सो दिस इज अनदर इफेक्ट विच इज वेरी कॉमन, एंड विच इज बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, air pollution, water pollution, hybrid food, chemically ripe food, and stored food. Stored food is very common in children. So we have to take care that we save our next generation. हमारा तो जो हो चुका, पुरानी जनरेशन जो थी वो स्वस्थ होके चली गई. अब जो आने वाले हैं उनको बचाना हमारी बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ मतलब जैसे एप्पल मिलेगा ठंड में, कहाँ पे मिलता था एप्पल? पहाड़ों में, है ना. अगर हम गर्मी के प्रदेशों में एप्पल खाते हैं साल भर, तो वो शरीर में उष्णता देता है. ऑलरेडी हीट है, अभी आप मई में एप्पल खाएंगे तो क्या होगा? शरीर को और पित्त बढ़ा देगा, उष्णता बढ़ा देगा. तो उससे रिलेटेड फिर बीमारियां चालू हो जाती है. शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा, शरीर की इम्यूनिटी कम करेगा उससे. तो हमको ये जानकारी लेनी है कि किस देश में, किस भाग में कौन सी चीज़ बनती है, वो उस सीज़न में खानी है. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल सब जगह मार्ट खुल गए, और मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे लोग मार्ट में जाते होंगे, तो दिख गया तो ले लेते. कोई कहते पापा ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, तो हम उठा के फट से बास्केट में डाल देते हैं. ये नहीं सोचते कि इस सीज़न के लिए और अपने बच्चे की प्रकृति के लिए ये ठीक है कि नहीं. ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना. वाटर प्यूरिफायर, आरओ बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग भी सब यूज़ करते हैं आरओ,
क्योंकि वैसा पानी बहुत सूट नहीं होता है, लेकिन इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं। तो अपने देसी तरीके में इन इंडिया इन समर्स वी यूज मटके का पानी, नो, मिट्टी से बना, एंड दैट अर्थ एलिमेंट इज व्हाट preserves all the micronutrients, but this plasticated filters which we use, they don't. Okay, so I will not talk more about that, because they are so deeply ingrained in our lifestyle, all these things, that it will become very difficult to cut off immediately. But to some extent we can use this, and we can use our traditional methods also. Okay, then micronutrients deficiency and their health effect. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो पृथ्वी में खनिज बोलते थे ना हम लोग, मेटल्स मिलते हैं, वो जो है वो अगर शरीर में बहुत कम मात्रा में होते हैं, उसमें से विटामिन हैं, विटामिन मल्टीपल विटामिन है, ए इसमें ए दिया है, B12 दिया है, आयरन डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी, फिर मल्टीविटामिन B6 बी कॉम्प्लेक्स के पूरे, जिंक डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी। अब B12 की डिफिशियंसी हो रही है या बी कॉम्प्लेक्स की, तो आप देखो मुंह में छाले आने लगते हैं। फिर विटामिन ए है तो आंखों में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कैल्शियम कम है तो हड्डियां कमजोर रहती हैं, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये बहुत कम मात्रा में हमको लगते हैं, जो जैसे नारियल पानी है, जैसे केला है, इन सब में ये मिलते हैं। तो केला एक ऐसा फल है जो पूरे साल में टिकता है, और मेरे ख्याल से किसी ऋषि ने ही इसका बनाया था। तो मतलब ये हाइब्रिड फॉर्म में तब बना हुआ था जो उपयोगी था। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम रहते हैं तो फटीग होता है बहुत जल्दी। फटीग माने बहुत थकान होने लगती है, मसल में क्रैम्प आते हैं। हम बोलते हैं ना सोडियम पोटेशियम सॉल्ट कम है तो पिंडरी में जकड़ता जाता है, पिंडरिया। कुछ लोग रात को उठ के पैर मारते हैं जोर से, तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर शरीर में चिमटी भरती है, जैसे सुनपना आता है, तो ये भी एक डिफिशियंसी का लक्षण है। और ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ये बैलेंस नहीं करेंगे जिससे हमारा शरीर बना है, अगर ये बैलेंस नहीं करके रखेंगे तो इम्यूनिटी पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट पड़ता है। इम्यूनिटी पे रिजल्ट पड़ते ही वायरस अटैक करने को रेडी है। आपको वायरस ढूंढ ही रहा है, हवा में घूम ही रहा है कि मैंने किसके पास जाना है, तो एक मैग्नेट की तरह वो शरीर पे खींचा जाता है कि भाई इधर सब कुछ कम है, इधर अपना सर्वाइवल भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छे हेल्दी पर्सन में वो इतनी देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उतनी इंटेलिजेंस है उस छोटे से वायरस में, दिखता भी नहीं जो हमको आंखों में। और हम इतने बड़े रह के, सब पढ़े लिखे रह के, हम अपनी जीवन शैली में गड़बड़ कर रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। विटामिन ए आंखों की बीमारियां देती है। ब्लाइंडनेस तो बहुत सीवियर केसेस में होता है, ऐसे घबराने की बात नहीं, लेकिन रिस्क रहती है इन्फेक्शन की हमेशा। B12 के कारण नर्व्स कमजोर होती हैं। नर्व्स कमजोर होने से मांसपेशियां, मसल्स कमजोर होती हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज, फॉगिंग ऑफ मेमोरी, अरे ये यहाँ रखा था, कहाँ गया, वहां गया, अभी तो चश्मा यहाँ था, बुक यहाँ थी, ऐसे होता है ना। तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से है। आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया हो सकता है, ब्लड की खून की कमी हो सकती है, और इसकी वजह से हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो ये बहुत संभालना बहुत ज़रूरी है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दम लगना, थोड़ा सा हम चलते हैं, 8-10 सीढ़ी चढ़ ली, दम लग गया। ठीक है, ऐसी आयोडीन के कारण ब्रेन डैमेज होते, ब्रेन सेल्स में इफेक्ट होता है इसका। और कभी कभी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, मतलब पैदा होने के बाद बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं वो ठीक से अचीव नहीं होते। देयर इज अ डिले इन द माइलस्टोन्स एंड मे बी लेटर सम डिफेक्ट्स इन द स्पीच एंड बिहेवियरल पैटर्न्स आल्सो along with musculoskeletal differences. Okay, then vitamin D deficiency can cause a decrease in height, stunted growth overall, weak bones and weak teeth. So the basic functioning of walking, mobilization and chewing, that gets affected, and that affects directly the immunity. अगर खाना यहाँ पे ही नहीं ठीक से खाया गया तो फिर वो पचता नहीं है तो जठराग्नि कम होती है। आयुर्वेदा में अग्नि के कारण हमारा शरीर चल रहा है, अग्नि और हवा के कारण। तो अगर वो अग्नि धीमी हो गई तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और जैसे मैंने अभी हाथ हिलाया, इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हम सब जानते हैं, है ना। मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी से आया, तो वो एनर्जी में डिफिशियंसी होने लगेगी।
Zinc deficiency gives hair loss, which is very, very common because of poor water also and poor food, and hair changes and eye problems. Calcium deficiency can cause cramps, muscle cramps, especially in the calf region and back. Sometimes it also turns into fibromyalgia, which is very debilitating for a working person. खासकर जिनको ऑफिस जाना है, मोबिलिटी अच्छी है या खेल कूद में है जो, उनके लिए ये बहुत हानिकारक हो जाता है, मसल स्पाज्म एंड फटीग। तो इन सब के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। देखो पहले कैसे होता था कि कुछ कम पड़ गया तो खाने में वो पदार्थ बन जाता था, जैसे हम कोशिम्बीरी खाते हैं, है ना, पूना के लोग तो जानते होंगे, ककड़ी की कोशिम्बीर, गाजर की कोशिम्बीर नींबू डाल के, ककड़ी दही के साथ, आलू केले की और दही की बनती है त्योहारों पे, उसमें ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। उसका जो कॉम्बिनेशन है त्योहारों के भोजन का, मैं इसके बारे में बात करूंगी भोजन के बाद में, तो ये कॉम्बिनेशन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फिल करता है, ठीक है ना। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो गया कि समोसे के साथ कोक आ गया, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? We will talk about this when we touch the topic of food. Then we have to take care and precautions. Very important to wash hand frequently. COVID time से वैसे भी सबको आदत लग गई है। Earlier days we had an आंगन in the house, एक आंगन होता था और वहाँ पे हम बाहर हाथ पैर धो के ही अंदर घर में आते थे, चप्पलें बाहर ही रहती थी। लेकिन फ्लैट सिस्टम आ गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हाथ धोने को जगह ही नहीं। जो भी आता है बाहर से पहले सोफे पे बैठ जाता है, रिमोट को हाथ लगाता है, कुछ खाता है, फिर अंदर जाके हाथ धोता है खाना खाने के बाद। So this is again not a very good idea to follow this. See that you keep some place for cleansing first. Then covering nose and mouth while coughing. ये हमने कोविड में तो देखा ही है, मास्क लगाना भी सब सीख गए, तो ये बहुत ध्यान से बरतना है। फिर से अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, जिनको तकलीफ हुई है उनके साथ आप थोड़ा सा दूर दूर बैठ के बात करें, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई चिंता नहीं है, आपका तो धर्म ही सेवा का है। वैसे ही घर के लोग भी जो हैं बीमार व्यक्तियों के, उनका भी धर्म उनकी सेवा है, लेकिन सेवा को थोड़ा सा सावधानी बरत के करना। यू हैव टू गो लिटिल cautious and take care of yourself also to treat them. Avoid touching nose, mouth, eyes if you are infected. नहीं तो ये जो मॉइस्चर रहता है ना अपने आंखों में, आपको पता है ना 70% शरीर पानी से बना है, 70% of body is water. You have wetness in eyes, पानी है ना आंखों में। मुंह में देखिए तो अभी मुंह सूखा है कि पानी है? अगर मुंह सूखा है तो आपकी तबीयत खराब हो रही है, अगर मुंह में गीलापन है तो तबीयत ठीक है। वैसे आंखों में ड्राइनेस है तो तबीयत खराब हो रही है। सो देयर इज वाटर एवरीवेयर। संगीता दीदी ने पानी पी लिया बात करते करते। आप देखिए ऐसे हिला के मुंह, आपके होंठ सूखे क्या, गाल है तो जल्दी से पानी लीजिए। चलिए मैं भी ले लेती हूँ यहाँ पे, आप भी लीजिए। हमको बिना शर्माए ये आदतें फिर से रखनी है अपनी, ठीक है ना। तो आप सब पानी पीजिए, मैं बात करती हूँ। Avoid contact with infected people. Avoid touching nose, mouth, eyes, क्योंकि इसके द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है। Disinfecting hard surfaces, जैसे हमने कोविड टाइम पे भी देखा, लैपटॉप है, लिफ्ट का बटन है, तो क्या करते थे लोग, सैनिटाइजर डालते थे या फिर ऐसे करके दबाते थे हाथ के पीछे की साइड, क्योंकि ये मुंह में नहीं लगता है, तो ऐसे करके, या छतरी के टिप से या पेन के निप से, है ना। तो ये हम सब जानते हैं, डिसइंफेक्टिंग हार्ड सर्फेसेस। आजकल फोन एक दूसरे का, हम फोन आता है तो बोलते हैं भाई आपका फोन आया, ऐसे दे देते हैं, और हमारे मुंह का श्वास का जो निकला है बाहर कभी कभी फोन पे लगा रहता है, कानों से लगा रहता है, तो अगर इन्फेक्शन है किसी को तो उन्होंने थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, ठीक है। फिर प्रिकॉशंस माने क्या, जो सावधानी हमें बरतनी है ये हमने देख लिया। इसके अलावा प्रिकॉशंस में हमने मेडिकल प्रिकॉशन देख ली पहले ना, जो हमने देखा था एक्यूट केयर क्या है और लॉन्ग टर्म केयर क्या है और प्रिवेंटिव मेजर क्या है बीमारी के। उस समय में गुलन-बेरी सिंड्रोम के बारे में ही सिर्फ बात की थी। तो वो बहुत, किसी भी बीमारी के लिए एक है आदमी क्या हिस्ट्री लेके आता है आपके पास, क्या हुआ है, उसके बाद वो क्या शेयर करता है आपसे, जिसको सिम्टम्स कहते हैं। साइंस जो आप देखते हैं कि भाई ठीक है फीवर है क्या, रुको थर्मामीटर लगा के देखते हैं, ये आपने देखा हाँ फीवर है, कंफर्म कर लिया, ठीक है ना। सिम्टम्स, साइंस, उसके बाद हम डायग्नोसिस कैसे पहुंचेंगे, तो क्या फर्क है अलग अलग बीमारियों में
और ये बीमारी में क्या विशेषता है, हमने कैसे कहा ये कोविड नहीं, ये गुलनबेरी है, या ये गुलनबेरी नहीं, ये जीका है। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमने अभी देखा। उसके बाद आता है फिर ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देखी, जो गुलनबेरी सिंड्रोम की बात की थी हमने। उसके बाद हम कंजर्वेटिव या प्रिवेंटिव मेजर्स पे आए थे, और अभी हम प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स में प्रिकॉशंस भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट पैकेज की तरह आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो ये हो गया प्रिकॉशंस में। अभी आपको पता है कि आपके कितने सोर्सेज हैं एनर्जी के? ऊर्जा कहाँ से आती है शरीर में? कभी सोचा है ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा कहाँ से आती है, सोचा है कभी आपने? ऊर्जा आती है 4 मुख्य जगह से, ठीक है। फूड, पहला है भोजन, भोजन और पानी। सेकंड है स्लीप, नींद, अच्छी रेस्ट और नींद होनी चाहिए। थर्ड है एयर, शुद्ध हवा होनी चाहिए, अच्छी श्वासों की अपनी प्रक्रिया आपकी अच्छी होनी चाहिए। और चौथा है गहरा विश्राम, जिसको हम आजकल मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन चारों के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि इन सब की जरूरत क्यों आन पड़ी है अपने को ऐसे। तो क्योंकि जीवन में तनाव आ गया। तनाव है, आप में से किसको तनाव है या किसको तनाव नहीं है? ऐसे लगता है तनाव तो मुझे भी है। किस चीज के तनाव हो सकते, देखते हैं हम। तनाव माने कोई बीमारी नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट एन इलनेस। स्ट्रेस इज सिंपल मॉडिफिकेशन in your routine life. What is the modification? See, you are, suppose I'm giving an example of a housewife, ठीक है। एक हाउसवाइफ है, 6 लोगों की फैमिली है समझो, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ और दादा दादी, ठीक है ना। ये 6 लोग, आजकल तो 40 लोगों का परिवार तो छूट ही गया है, 6 लोगों का परिवार है समझो। तो वो महिला रोज किसी की सहायता से खाना बनाती है 6 लोगों का 3 टाइम, ठीक है। अब उसमें आ गए 40 मेहमान या 10 मेहमान आ गए, चलो भोजन पे बुला लिया हस्बैंड ने और बताया नहीं, और बस आधा घंटा पहले बता रहे मैं बताना भूल गया, 10 लोग आ रहे हैं जब को खाना बनाए, तो क्या हो गया? स्ट्रेस आ गया। आप समझ रहे हैं? मतलब मोर वर्क लेस टाइम इज स्ट्रेस, मोर वर्क लेस क्वालिफिकेशन। ओ मेरी तो रोटी वाली नहीं आई, अब तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा रोटी बनाने को। ये क्या हो गया? तनाव हो गया। वैसे ऑफिस में एक आदमी छुट्टी पे चले गया और प्रेजेंटेशन था किसी का, अरे उसका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा आज, मुझे 2 प्रेजेंटेशन साथ में देने पड़ेंगे। मतलब क्या? तनाव। मोर वर्क लेस स्टाफ, आपके पास सुविधा ही नहीं है। लोग तो कम हो ही गए, मैन पावर अभी हमारा अमेरिका बन रहा है, सब मशीन लगा दिए। पहले आवाज देते थे तो कोई ना कोई दौड़ के आता था मदद करने, आजकल कोई आता ही नहीं। तो लेस पीपल टू हेल्प और लेस स्टाफ एंड मोर वर्क इज ऑल्सो स्ट्रेस। अर्ली टू रीच है वो, ईच नहीं, अर्ली टू रीच होम। ट्रैफिक जैम, आपको कहीं पे भी जल्दी जाना है, आपकी फ्लाइट 7 बजे की है, आप 5 बजे तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, फिर आप सोचते हैं कि 5 का 6 हो गया, 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो मेरा बैग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तनाव। और हम सब रोज जूझ रहे हैं इन सब चीजों से। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है कि अल्प तृप्ति कहते थे ना, कि बेसिक चीजें मिल गई, बाकी जो सारा काम है वो हमारी सेवा है दुनिया के लिए, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब सबका अपना टारगेट लगा हुआ है, इतना पैसा कमाया क्या टारगेट, इतने क्लाइंट्स लिए क्या टारगेट। हमारे पास IAS ऑफिसर्स भी हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं, और बिजनेस वाले भी हैं साथ में। तो ये जो टारगेट लग गया है जीवन में, इसके कारण बहुत झूंझ रहे हैं लोग, दे आर स्ट्रगलिंग। एंड यू नो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, मोर वॉन्ट्स इज मोर स्ट्रेस। आपकी जितनी जरूरतें कम रहती है, नीड इज लेस, एंड व्हेन यू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन योर नीड्स आर लेस। लेकिन जब वांट्स आपकी चाहिए जो है अचीवमेंट करने की, ये जब बढ़ जाता है तो आप एक्चुअली कम जिम्मेदारियां लेने लगते हैं, और आप अंदर से भी बहुत सिकुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेस पावरफुल। और लोगों को लगता है कि एक गोल के बाद दूसरा गोल अचीव कर रहे हैं तो हम पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो आपको नीड किस चीज की और वांट किस चीज की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीवन में तनाव कम रहेगा, ठीक है। तो तनाव बीमारी नहीं है, तनाव की डेफिनेशन ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो तनाव रहने से होता क्या है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज स्ट्रेस। सो वी आर गोइंग टू द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज।
Here, acupuncture says that, और even मर्मा, आयुर्वेदा में मर्मा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा है. आप जानते हैं ना, there is energy in the body, and this energy is moving smoothly. जैसे आपकी ट्रैफिक स्मूथ जा रही है रास्ते पे, और समझो सडनली कोई गाड़ी वाला सामने से और सडनली ब्रेक लगता है तो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है ट्रैफिक. आपकी गाड़ी की, दूसरे की गाड़ी की स्पीड, उसके पीछे की, सब डिस्टर्ब हो जाता है ना, और वो गाड़ी फंस गई तो ट्रैफिक जैम होता है. इसी तरह से शरीर में तनाव जब भी आता है तो हमारी ऊर्जा की जो वेव है अंदर जो चल रही है एक स्मूथ एस साइड में चलती है, वो एस नोड में, तो अगर वो टच हो जाती है किसी भी तनाव से तो उसमें उथल पुथल होने लग जाती है, और इसी को स्ट्रेस कहते हैं. और ये जो ऊर्जा इम्बैलेंस होती है, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, दिस लीड्स टू मल्टीपल डिजीजेस इन द बॉडी. एंड वन prime thing is it attacks the immunity of the body. So it becomes very important to understand this. So we will do one small exercise now. ठीक है ना? आप आंखें बंद करिए, सब आंखें बंद करिए और देखिए तो आपके शरीर में ऊर्जा की तरंग कैसी है अभी. How is the energy flow in the body? Can you feel energy in your legs, knees? Energy means there's some light movement happening inside. If you are aware, you will understand this. ठीक है, अभी आंखें खोलिए और क्या करिए, थोड़े से हाथ झटकते. मुझे आप लोग दिख नहीं रहे, आपकी कैमरा बंद है. थोड़ा सा हाथ झटकिए, थोड़ा सा दोनों पैरों को झटकिए, अच्छे से जोर से झटकिए, सर को भी हिलाइए और अभी आंखें बंद करके बैठिए, स्थिर बैठे. Sit still now, and now you observe the flow of energy in your body. Now you understand there is some movement in the head region, hands and legs, but little less in the middle part of the body, which we have not moved. And slowly you may open the eyes. आपको ऊर्जा समझ में आई? What is the energy in the body? So this energy is flowing smoothly. और अभी बात करते करते समझो मेरा नेटवर्क चले गया या आपका नेटवर्क चले गया तो क्या होगा? अरे बाप रे, नेटवर्क चले गया, क्या हुआ? एकदम से जो आप शांत बैठ के सुन रहे हैं, उथल पुथल चालू हो जाएगी. माने क्या? आपके ट्रैफिक में एक स्पीड ब्रेकर आ गया. आप स्मूथ ड्राइव कर रहे थे, एकदम ऐसा बम्पी स्पीड ब्रेकर आ गया तो सब हिल गया. यही तनाव है. ठीक है, जब भी आप एक शांत स्थिति में बैठे रहते हैं, ऊर्जा का प्रत्युष से बात करा दो. बदल जाता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं. और वो स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है. एक्यूप्रेशर में, मर्मा में तो यही कहते हैं, ऊर्जा का बहाव बदल गया तो तनाव आने लग गया. और ऐसा छोटा मोटा तनाव रोज जीवन में आता है और उससे शरीर नलीफाई भी कर देता है. मतलब समझो किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, बहुत कॉमन चीज है घर में झगड़ा होना. तो समझो आपके घर में झगड़ा हो गया तो आपका मूड तो खराब हो गया, आपकी एनर्जी तो लो हो गई. फिर क्या करते हैं, कोई बच्चा आता है दौड़ते दौड़ते, पापा चलो ना आइसक्रीम खाने जाना है. तो क्या करते हैं, चलो आइसक्रीम खाने जाते हैं. आइसक्रीम दे जाते हैं जब बच्चों को और आइसक्रीम खाते हैं तो क्या हो गया, मूड फिर से चेंज हो गया. या फिर टीवी पे आपने कुछ पुराने अपने पसंदीदा गाने लगा दिए, या फिर आप बोले अभी झगड़ा हो गया, चलो मैं एक सैर करके आता हूँ बाहर. आप नेचर वॉक करने गए, मतलब आप पेड़ पौधों के साथ घूम रहे हैं. आपको पता है चेहरा देख के मनुष्य को क्रोध या मोह होता है. तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब भी झगड़ा होता है या तो लोग घर के साइलेंस में चले जाते हैं जिससे वो फिर से अच्छे से उभर के आते हैं, या फिर बाहर कहीं चल जाते हैं घूमने. तो जब चेहरा नहीं दिखता है तो वो क्रोध और मोह भी शांत हो जाता है. ठीक है, ये तो हम काफी जगह जानते भी हैं इस बात को बहुत अच्छे से. तो ये सब इम्यूनिटी कम होने के कारण है. बॉडी को रीसेट कैसे करना है? फिर रीसेट करने के लिए एक्सरसाइजेस, योगासन, एक्सरसाइजेस में रनिंग आ गया, स्किपिंग आ गया, योगा. मैंने आपके लिए कुछ चीजें लगा के रखी थी यहाँ पे. ये हर घर में मिलता था पहले, स्किपिंग रोप. और यूथ लोग तो हम भी पहले 500 से 1000 स्किप्स करते थे, अब 100-200 पे आ गए हैं, कभी टाइम नहीं मिलता ज्यादा. फिर ये थेरा बैंड्स है, ये रेजिस्टेंस बैंड्स है. जैसे हम
एक्सरसाइज कर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसको हम इसके साथ करते हैं तो उतनी ही ताकत बढ़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रेशर देता है आपकी अगेंस्ट मूवमेंट का। तो ऐसी चीजें आप खरीद सकते हैं। ये भी थेराबैंड है। जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, समझो तो हाथ ऐसे ऊपर लिया और ऐसे स्ट्रेच कर लिया इसको, ठीक है, पीछे से किया तो ऐसे स्ट्रेच किया, इससे क्या हो गया, स्ट्रेच करने से ताकत बढ़ रही, ठीक है। ऐसे ही हम चेस्ट के लिए भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे चेस्ट पे लगा के ब्रीदिंग के लिए एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये थेराबैंड से। तो एक्सरसाइज अगेंस्ट वेट विद वेट्स या अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। वेट से ताकत बढ़ती है, लेकिन जिम वाला वेट वाला बहुत बिना ट्रेनर के नहीं करना। आप चलते हैं, जैसे पहले पैरों में घुंघरू डालते थे, थोड़े मोटे कड़े रहते थे, हाथों में मोटे कड़े रहते थे, इसका कांस्टेंट प्रेशर आप पे पड़ता था, ठीक है। तो अब ऐसी चीजें आ गई, इसको ग्रिपर कहते हैं। कुछ नहीं तो आप टीवी देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो एक 50-50-100 बार ये कर लीजिए, तो आपको ध्यान में रहेगा 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में भी आपको चिमटा उठाने के लिए, बर्तन पकड़ने के लिए तक दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी चलाने के लिए दिक्कत नहीं होगी, कुछ स्क्रू ड्राइवर करने, कुछ भी काम फाइन कोऑर्डिनेशन या स्ट्रेंथ वाला वो ठीक से कर पाएंगे। फिर कुछ ऐसी भी चीजें मार्केट में है, इसको एक्यूप्रेशर बॉल कहते हैं। आपको पता नहीं कहाँ कौन सा पॉइंट है, लेकिन बस आपने थोड़ी देर ये दबा दिया तो काम हो गया जहाँ जहाँ होना है। तो ऐसी चीजें एक्सरसाइजेज में आपको थोड़ा स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अंडर गाइडेंस। फिर इसका दूसरा पार्ट है योगा। योगा में योगासन मतलब आसन, ठीक है। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है। इसके बिना योग पूरा नहीं होता। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि कुछ आसन कर लिए तो हमने योगा कर लिया भाई। तो इट इज नॉट लाइक दैट। सो यू डू सर्टेन सेट ऑफ आसनास विच आर द बॉडी पोस्चर्स and be still and comfortable in that posture, like Padmasan, Sukhasana, or we will show you Vajrasana in some time, and we will teach you on breathing also. If you do that, then it keeps your health good and strength also. Mind, for mind, pranayam is very important. Knowledge is very important. अब अभी हम जो सब बात करें ये सब नॉलेज है। मन को शांत रखना है तो नॉलेज बड़ा जरूरी है। जैसे आप घर 9 बजे पहुंचते हैं और समझो, या आपके घर के कोई 9 बजे पहुंचते हैं, आपके गेस्ट आने वाले समझो 9 बजे, और वो 10 बजे तक उनका कुछ फोन ही नहीं आता, तो क्या होता है, आप थोड़े से बेचैन हो जाते हैं ना। लेकिन एक फोन करके कोई बोल देता है कि मैं 9 की जगह 10:15 को आऊंगा भाई, आप अपना खाना खा लीजिए, तो क्या हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आप जानते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, रोज रोज जिंदगी में होते ही रहता है, कभी कोई नहीं आया टाइम पे, कभी कोई नहीं आया। तो ये छोटी छोटी जो कम्युनिकेशन की नॉलेज है या क्या करना उसकी नॉलेज है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो माइंड को शांत रखने के लिए एक ज्ञान ज़रूरी है, स्पिरिचुअल ज्ञान भी और नॉर्मल लाइफस्टाइल का भी। जैसे किसी को अभी बीमारी आ गई तो क्या करना, डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, ये प्रिवेंशन लेना है, हाथ धोने, पैर धोने, मास्क पहनना है, ये भी नॉलेज है। इससे मन शांत हो जाता है, ठीक है। मन अगर शांत नहीं हुआ तो फिर वो आपका स्पीड ब्रेकर आ जाता है बीच में। फिर प्राणायाम बहुत जरूरी है मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए। मतलब कुछ पुराना हो गया, उसको भूल के आगे चढ़ने के लिए प्राणायाम बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है। उसके बाद हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ, मेडिटेशन गहराई में विश्रांति देता है, शरीर को भी, मन को भी, और आपके अंदर की सूक्ष्म तरंगों के पे भी असर करता है। ट्रॉमा माने कोई पुरानी चोट, चोट मतलब फिजिकल में कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, वैसी चोट। और मन पे आघात, झगड़ा हो गया, इसका आघात मन पे हुआ। कुछ बुरी न्यूज आपने पढ़ ली, जैसे पुणे में गुलनबेरी सिंड्रोम आ गया, मन पे आघात हो गया कि अरे वो तो हमारे बहुत करीबी थे, मन पे आघात हो गया, ठीक है। तो मन का आघात अगर मिटाना है, और हर एक व्यक्ति को मन का आघात है, everybody is suffering with some trauma in the mind. It could be a loss of a near dear one, or it could be some materialistic thing, or it could be some पुराना संस्कार। तो इसको अगर हटाना है हमको, तो प्राणायाम और ध्यान की बहुत ज़रूरत है। इस पर हम बात करेंगे फिर से। एनहांस्ड इम्यूनिटी, कैसे अब इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे? पहले तो भोजन अच्छा करना है। भोजन माने बैलेंस्ड डाइट,
जिसमें हम आयुर्वेदा देखो तो षड रस, वो कोक और समोसे वाला बैलेंस डाइट नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा षड रस में जितनी भी जीभ पे टेस्ट आती है हमारी 6 तरह की, उसका भोजन रोज शरीर में जाना है। यहाँ डॉक्टर्स तो जानते होंगे टेस्ट बड्स के बारे में। तो क्यों जरूरी है, क्यों टेस्ट बड्स है हमारे? अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये जो है ये हमको अच्छा लगने के साथ जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए उससे प्रिवेंट भी करता है, और जो चाहिए उसका स्वाद अच्छे से लेने भी देता है, ठीक है। तो जीवन भोजन में षड्रस चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसमें सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जैसे मैंने कहा कोशिम्बीर खाते हैं हम, ये कोशिम्बीर में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कॉम्बिनेशन की वजह से। दूध के साथ हल्दी लेते हैं, इसमें बहुत सारा फायदा होता है। तो ये कॉम्बो वाले चीज़ें भी हमारे बहुत सारे इश्यूज सॉल्व करती हैं। फिर इसके बाद भोजन कितना करना है, इतना क्वांटिटी का भोजन है, आप मतलब हाथ के ऊपर हाथ रख लिया ये क्वांटिटी के, लेकिन सब थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, डिवाइडेड डोसेस में खाना है, ठीक है। और फिर कब खाना है? ताज़ा शुद्ध भोजन खाना है, गर्म भोजन खाना है। ठंडा हम लोग भारत में हमेशा ठंडा मतलब क्या लेते हैं, ठंडा मटके का पानी लेते हैं और ठंडी छाछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने नागेश जी हाथ उठाया, हम बाद में लेते हैं क्वेश्चन सारे, आप नोट कर लीजिए पेन पेपर पे, ठीक है ना, टाइप कर लीजिए फोन में। तो ये हम ठंडा और गर्म का समझना है हमको। खाना खाते समय खाना शुद्ध और गर्म खाना है। 3 घंटे में खाना बासा होने लगता है, ठीक है ना। जैसे अपने आजकल हम टिफिन ले जाते हैं, सुबह बनाया है चावल 6 बजे 8 बजे और आप उसको खा रहे हैं 2 बजे 3 बजे, आपके बच्चे स्कूल में 2 बजे 3 बजे खा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इम्यूनिटी को कम कर रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा करके। और अगर ऐसे व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे, बाकी सब चीजें नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली सिर्फ खाने की वजह से भी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सब चीजें साथ साथ चलनी है, खाना भी, एक्सरसाइज भी, ध्यान भी, प्राणायाम भी, रेस्ट भी, ठीक है। फिर इसमें बात खाने की, हाँ चबा चबा के खाना है, सलाइवा अच्छा जाता है तो डाइजेशन अच्छा होता है, पेट अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा है ना। वो कुछ चूर्ण की ऐड भी देखते थे बहुत सालों पहले, पेट स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ, तो कायम चूर्ण। तो ऐसे पेट स्वस्थ रहता है तो फिर बाकी शरीर अच्छा चलता है, ठीक है। वहीं से खून तैयार होना चालू होता है, न्यूट्रिशन मिलना चालू होता है। फिर फिजिकली एक्टिव रहना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, और बीच में 2 घंटे के ऊपर बैठे नहीं रहना है एक भी पोजीशन में। अगर हमारे सेशन 2 घंटे चला है तो बीच में ब्रेक लेना है और जाके आना है, ठीक है। फिर मेंटेन हेल्दी वेट, आपको बीएमआई पता है, बीएमआई आजकल तो सब गूगल पे आ ही जाता है, ये हेल्दी वेट भी मेंटेन करना है। फिर हमने बात की फूड की, फूड के बाद बात करते हैं स्लीप की, ठीक है। इसके बाद ब्रेथ लेते हैं। स्लीप कैसी होनी चाहिए? नींद अच्छी होनी चाहिए। हमें कुछ एग्जाम्पल भी बता रहे थे संगीता जी, आप बताइए तो कौन सा एक्टर था वो? एक यंग एक्टर अपना जो जिम वगैरह जाता था, 40 की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस का बिग बॉस में। तो उससे क्या होगा, उन्होंने बाकी सब चीजें तो देखी लेकिन रेस्ट नहीं ली, रात को भी शूट के लिए जाते थे, रात को बाहर खाते पीते थे, उसकी वजह से सब बिगड़ी। तो ये सब चीजें साथ साथ होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें तो अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन जी है, तो ये लोग अपना समय पे उठते हैं, समय पे जिमिंग करते हैं, समय पे खाते हैं, समय पे काम करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, अच्छी रेस्ट लेते हैं, कभी नहीं हुई तो उसका भरपाई कर लेते हैं रेस्ट की, इसलिए आज भी वो चलते दौड़ते फिरते अच्छे से, है ना। तो ये हमको इनसे ये स्फूर्ति लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई इतनी उम्र में भी लोग इतना काम कर रहे हैं, क्यों, कैसे कर पा रहे हैं, उसके पीछे उनकी लाइफस्टाइल, ठीक है। सो लाइफस्टाइल वेयर्स अ लॉट। So that is about sleep. 8 to 10 hours of adequate sleep everybody requires. So if you take that much amount of rest, then the internal organs function nicely. Otherwise, थोड़ा outside, आवाज otherwise, अभी ठीक है? हाँ, Otherwise, outside we are working, but outside we rest. Inner organs don't get rest. Okay, so sleep is important. Then sleep is very good for healing also. Night 4 hours of deep sleep, 11, 12, 1, 2, 3. 11 to 3 or 2 p.m.
is the time when liver and gallbladder function well to restore the body's or healing or cell regeneration and also to plan for the body. जैसे आप आपका शेड्यूल प्लान करते हैं कि भाई आज 7:30 बजे से 7 बजे से 8:30 तक मीटिंग रहेगी, वैसे लिवर गॉल ब्लैडर भी आपके लिए प्लानिंग करते हैं अंदर कि इस समय ये ऑर्गन में एनर्जी जाएगी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पता रहनी चाहिए. उसके बाद थर्ड सोर्स फूड, स्लीप, फिर है ब्रेथ. हवा का लेना आगमन अपना जीवन का पहला कार्य है. बेबी इज बॉर्न बाय ब्रीदिंग out and he cries, takes a breath in, and when he breathes out we understand the sound is coming out. ठीक है ना? So this is very important. Last act of life is also breath. So breathing out is the last act of life. Breathe in, life starts. Breathe out, life ends. And in between we are breathing. If we break this wave of breathing, then life is gone. Okay, so breathing is the most important. And here I will just tell you the connect between the breath and emotions. अच्छा, अभी आप आंखें बंद करिए, तो एक बार आंखें बंद करिए और जरा ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं या जो आपसे हमेशा लड़ते रहता है, और देखो तो कैसे लग रहा है. और अभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए, किसी छोटे बच्चे के बारे में जो हंसते रहता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत प्यार करता है और आप भी उनको प्यार करते हैं. अच्छा, अभी कोई ऐसा खाना सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद है. वाह वाह, कैसे हो रहा है एकदम, आहा, है ना? और इसके साथ आपकी ब्रेथ भी चेंज हो गई. आंखें खोलते हैं. सो आवर इमोशंस हैव अ वेरी डायरेक्ट कनेक्ट विद द ब्रेथ. जब आप खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आपकी ब्रीथिंग एकदम हल्की है, पता भी नहीं चलता आप ब्रेथ कर रहे हैं. नॉर्मल मध्यम लय, मध्यम गति और मध्य से उसकी वेव उठती है. जब आप उदास होते हैं, जैसे किसी की कुछ बुरी खबर सुन ली, कुछ गड़बड़ हो गई, लॉस हो गया, पैसे चोरी हो गए, एकदम से क्या होता है, ऐसे एनर्जी कम हो जाती है. और ब्रेथ आपकी कैसी होती है, हाँ क्या कहा, मतलब क्या, आप एकदम ऐसे आँख भरते हुए से लंबी धीमी सांस ले रहे हैं. और अगर डर है तो हाँ, क्या हो गया, ऐसे हो जाता है. मतलब तभी भी आपकी ब्रेथ चेंज होती है. गुस्सा आता है तो इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसे करते हैं ना, तो क्या हो गया, ब्रेथ चेंज हो गई. इसका रिलेशन किसी से नहीं समझा. अगर हम इस ब्रेथ को ही कंट्रोल करना सीख ले तो हमारे इमोशन अपने आप समझ जाते हैं. ठीक है ना? इसको हम रिवर्स तरीके से देखते हैं. ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया तो हमने इमोशंस, और यहाँ आती है हमारी सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम. तो प्राणायाम की वजह से मन तो शांत होता ही है, बाकी भी शरीर में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं. तो हम अभी सीखेंगे प्राणायाम भी. एक बार इसकी बात कर लेते हैं. ये है पावरफुल टेक्निक्स टू एक्टिवेट वेगस नर्व. वेगस नर्व आप जानते हैं ना, इसको वॉन्डरिंग नर्व कहते हैं. आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी आ रहे हैं. तो ये वेगस नर्व मस्तिष्क से निकल के क्रेनियल नर्व में से एक है, और पूरे शरीर में ये दौड़ती है इधर उधर, मतलब मेन सर और धड़ में, और ब्रांचेस तो निकलती हैं. फिर धड़ में जब जाती है तो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स हैं आपके, मस्तिष्क से लेके नीचे पेल्विस तक सब ऑर्गन्स हैं. हाथ पैर तो बाकी स्नायु वगैरह है. ठीक है ना? तो ये सब ऑर्गन्स को सप्लाई करती है. और अगर तनाव का डायरेक्ट असर इस वेगस नर्व पे होता है, और इस वेगस नर्व के जरिए सारे अंगों पे भी होता है. वैसे ही स्पाइन अगर अच्छी ना हो आपकी, तो पूरा नर्वस सिस्टम पे तनाव आता है. और नर्वस सिस्टम कहाँ फैली है, शरीर के एक एक कण में. ये हिला रहे हैं नर्वस सिस्टम की वजह से, ये खींचा कहाँ से, समझा है, नर्वस सिस्टम की वजह से. तो पूरे शरीर में बदलाव आने लगते हैं. ठीक है? तो आपको वेगस नर्व को भी एनहेंस करके रखना है, स्पाइन को भी अच्छा रखना है. तो इसके कुछ तरीके हैं, ये अभी हम करके देखते हैं. करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्राणायाम और करेंगे, और फिर हम ये करेंगे, क्या कहते हैं, ये वाली टेक्निक्स करते हैं. पहले ये करते हैं वेगस नर्व के, और फिर हम स्ट्रॉ ब्रीदिंग, मतलब आप सब हैं यहाँ, करेंगे. सीधा रखिए, तो पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं. अपने पास 5-6 मिनट है, करके देखते हैं. और हमने सांस लेनी है नाक से हल्की सी, और करके छोड़नी है. नागेश जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए.
हल्की सी सांस नाक से ली और एक लंबी स्ट्रॉ पाइप से जैसे हम हवा छोड़ते हैं वैसे आंखें बंद हाँ करके शर्मा साहब, 3 ब्रेथ लीजिए ऐसे। ब्रीद इन, मैं भेजूंगा अभी आपको। हाँ, पहुंचता हूँ होटल। हम्म। ब्रीद इन, अरे अच्छा। ब्रीद इन, अच्छा। observe the mind, observe the energy in the body. कल रात तक आ जाऊंगा। कल रात तक धीरे से आऊंगा। आंखें खोले। वेगस नर्व के साथ हम अभी दूसरा प्राणायाम सीखते हैं। इसको स्ट्रॉ प्राणायाम का चूइंग विद हमिंग, मतलब चबाना और वाईपी शर्मा नहीं आ रहे हैं। वाईपी शर्मा ने मना कर दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं भ्रामरी की तरह। तीन बार करके देखिए। चलो मैं देखता हूँ फिर, कोई बताता हूँ अभी होटल पहुंचता हूँ, बताता हूँ आपको इनकी जगह को। हाँ बिल्कुल। और विश्राम करें, आंखें बंद ही रखिए और फिर से अपने भीतर एक बार साक्षी भाव से देखिए। Become a witness to your own body and the sensations in the body. और अभी आपके कान के पीछे आप ऐसे मल सकते हैं ऐसे हाथ से, या फिर ऐसे करके ले जा सकते हैं हाथ। इसको 3-4 बार करके देखिए तो ठीक है। ये भी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। 3 चीजें हमने की, स्ट्रॉ ब्रेथ, भ्रामरी के साथ च्यूइंग और कान के पीछे से हाथ ले जाना। फिर ये गर्दन पे हम ऐसे अगर इस तरह से मसाज करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और पीछे भी ऐसे दोनों हाथ से, ये गर्दन पे मसाज करने से वेगस नर्व और सारी ही नर्वस सिस्टम को भी अच्छे से स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हेड मसाज के साथ नेक मसाज करते हैं, कंधे पे दबाते हैं तो भी तनाव हट जाता है। और फिर ठंडे पानी के छींटे मारना या फिर बर्फ हल्के से आपके रुमाल में लेके हल्के से अपने से ही लगा ली तो वो भी काम नहीं करता। ये 5 चीज़ें वेगस नर्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको करके देखनी चाहिए। फिर मन पे अगर आघात है तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम हमने एक स्ट्रॉ प्राणायाम देखा, एक हम उज्जयी प्राणायाम देखते हैं अभी। आपको क्या करना है, गले को थोड़ा सा ऐसा सिकुड़ के, मतलब ऐसे खींच के ऐसे हल्की आवाज वाली ब्रेथ करनी है। एक बार ये आ गई तो इसी को थोड़ा सा धीमा कर दे, इतने जोर से नहीं करना है। नॉर्मल ब्रेथ नाक से लेते हैं, है ना, हवा तो नाक से ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको हम दबा, जैसे हम शंख के लिए होठों को दबाते बजाते टाइम, या हम ऐसे वो पेपर की बनाते थे ना ऐसे करके बजाने के लिए सीटी, तो उसको हम थोड़ा सा सिकुड़ देते, वैसे ही गले को थोड़ा सा सिकुड़ के करना है, ये उज्जयी ब्रेथ। अभी इसको हम करते हैं 10 ब्रेथ्स। एक हाथ हमने घुटने पे रखा, हो सके तो ऐसे रखिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, या फिर सीधा रखिए महामुद्रा में, और दूसरा हाथ आपके पेट पर, पेट पे माने अपने ऐसे रखा है, ठीक है ना, इसको पेट पे अपने नाभि के पास ऐसे रखा है। ठीक है, तो नाभि पे हाथ को रखिए और फिर 10 उज्जयी सांस आप अभी लीजिए। सांस लेते समय पेट फूल रहा है और सांस छोड़ते समय पेट अंदर सिकुड़ रहा है। 2-3 सांसों के लिए पेट को जितना सिकुड़ सकते उतना अंदर खींचिए, नाभि को अंदर खींचना। सांस ले, पेट को फुलाएं, सांस छोड़े, नाभि को अंदर खींचिए। सांस लें, पेट फुलाएं, उज्जयी सांस छोड़ें, पेट को अंदर खींचिए। एक बार और, सांस लें, सांस छोड़े, पेट को, नाभि को अंदर खींचिए।
हर बार आप प्राणायाम आसन कुछ करते हैं, थोड़ी देर शांत रहना, उससे क्या बदलाव हो रहा है शरीर में इसका अनुभव लेना। धीरे से आंखें खोलें। अभी हमने 5 ही किए, 2-3 मिनट ही बचे हैं इसलिए, ठीक है। तो आप उज्जयी ब्रेथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका। तो वज्रासन में खाना खाने के बाद आप बैठ सकते हैं, ये फूड डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा। दिखाइए संगीता जी वज्रासन में, कुर्सी पे ही दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, उसी पे पलट के, बस गिरे नहीं उतना ध्यान रखिए। वो भी अपने क्लिनिक में ही है शायद अभी। तो वज्रासन में हम थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो नहीं दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहा है, आगे घ्यावा लगेल थोड़ा। हम ऐसा करके बैठते हैं। आप लोग चाहे तो वज्रासन में बैठे अभी, या देखिए अजून थोडंसं मागे घ्यावं लागेल, ते ब्राउन काया मागे तिथपर्यंत. अजून थोडंसं. तो आप घुटने पे खड़े हो जाते हैं और फिर वहीं पे एड़ी पे बैठते हैं. और एड़ी कैसी है आपकी? दोनों एड़ियां दूर है और अंगूठा पास में है. हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, स्पॉटलाइट देते हैं उनको, हाँ, देखते हैं फिर आप. यहाँ ये बिराज जी हो रख गया लीजिए है. खाना। हाँ, और क्या स्पॉटलाइट मंगाना है? कौन पानी दे मंगा पाएगा? लो। स्पॉटलाइट वो देंगे मंगा संगीता लो। जी को? चाय पिलाना? अच्छा वो दूध स्पॉटलाइट कौन देगा? चाय पिलाना कि नहीं? चाय रहने दे दे, तो वज्रासन में बैठ के आपको भस्त्रिका करना है. कैसे वज्रासन में बैठना है बताएंगे. अपने हाथ मुट्ठी कंधी के पास रखिए और आपने सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लिया और उंगलियां फैल गई ऐसे, और नाक से थोड़ा जोर से हवा छोड़ना. कैसे हम वज्रासन में बैठ के भस्त्रिका करते हैं. 5-5 के 3 मिनट. हाँ हाँ, उसकी 1 मिनट रुकिए. नहीं, छोड़ दीजिए संगीता जी, इधर देखिए. एक बार आप वज्रासन इधर फोटो को देख लीजिए और फिर हम हाथ मेरी तरफ करना है, ठीक है. फोटो का वज्रासन वैसे बैठ सकते हैं हमारी तरफ देखते हुए. लेकिन देखिए आया है आपको स्क्रीन पे वज्रासन बैठने का तरीका. और आपको सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, इसमें चीनी नहीं है बस. सांस छोड़ते दोनों हाथ तो नीचे, चाय है. थोड़ा सा जो जोर नहीं है से, वो झटके रख से नहीं, ठीक है. तो वज्रासन में इस तरह से आप बैठिए. ठीक है. ये वज्रासन में बैठना हो गया, ठीक है ना. मीठे मिलाना है आपको कुछ? और इस स्थिति में बैठ के दोनों हाथ आप मैं जैसे कर रही हूँ आपको वैसे करने हैं, ठीक है. मैं काउंट दूंगी, आप करेंगे 5-5 के 3 राउंड. ब्रीथ इन 1, इन 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 एंड रिलैक्स. दोनों हाथ घुटने पे, हथेलियां सीधी आसमान की ओर. सेकेंड टाइम. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. और विश्राम करें. देखिए तो शरीर में कैसी संवेदनाएं हो रही हैं. थर्ड राउंड 5 रिपीटेशंस विल डू. ब्रीथ इन, and relax and feel the flow of energy in the body. With just 5 breaths, 3 rounds, you have become little energetic. Okay. So visually we do 20-20 Bhastrika 3 times. Okay, not too fast, not too slow. So this is pranayam, and then we will do meditation also. Before that we will just complete 2-3 slides. I'll take 5 minutes more. प्रोग्नोसिस मतलब ये जो बीमारियां की हम बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी कम हुई है, इसका प्रोग्नोसिस आगे कैसे बढ़ता है. तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा ही होता है. मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन अपने आप चले जाते हैं कुछ दिनों में, जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी है, गले की खराश है. कुछ को हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कुछ हफ्तों में चले जाते हैं, क्योंकि वायरस का जीवन ही उतना होता है.
ठीक है ना। और उसको एक ऐसी थोड़ी सी कमज़ोर बॉडी ही लगती है अटैक करके करने को, अच्छी बॉडी पे वो इतना पनपता नहीं है, स्वस्थ बॉडी पे। तो मेडिकेशन भी आप ले सकते हैं। तो बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान देते हैं तो होता है। तो ये सब हमने भोजन की बातें हमने कर ली। वैसे पानी का जो पॉल्यूशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उबले हुए पानी को भी पी सकते हैं, नींद अच्छे से लेनी है। और फिर एयर पोल्यूशन के लिए आप भस्त्रिका करें, ट्रैफिक में कम जाएं, ठीक है ना। और पेड़ों के साथ ज़्यादा रहें, घर में तुलसी, नीम ऐसे पेड़ रहें तो ज़्यादा अच्छा। हमारे पास लक्ष्मी तरु के भी पेड़ होते हैं, ये बहुत मदद करते हैं लंग्स को अच्छा रखने के लिए। और अभी जो हमने भस्त्रिका किया, इससे रेसिडुअल एयर कम होती है और लंग की कैपेसिटी, वॉल्यूम बढ़ती है। डॉक्टर्स जो यहाँ हैं वो सब जानते होंगे इसके लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक 5-7 मिनट का ध्यान करते हैं, ठीक है, क्योंकि ध्यान बहुत आवश्यक है जीवन में। ध्यान प्राणायाम जब हम करते हैं तो वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस हो जाता है। आयुर्वेदा में कहते हैं जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 80% का 80 बीमारियां तकरीबन वात से होती है, 40 तरह की बीमारियां पित्त से, और 20 तरह की जो कफ दोष से उससे होती है, और बाकी इन सब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हजारों बीमारियां बनती हैं। तो हम जो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो ये धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है, ठीक है। और फिर घर के उपचार में हल्दी, तुलसी, ब्राह्मी, आंवला, शतावरी, नींबू और संतरे, ये सब चीज़ें जो हम रोज़ की लाइफ में खाते थे वो हमें अपनी तरीके से ही इस्तेमाल करनी है, पाश्चात्य देशों की पद्धति से नहीं। सलाद नहीं खाने, कोशिम्बीरी खानी है, ठीक है। और बाकी आप दवाई का सहारा ले सकते हैं। हमारे भारत को चाइना हो गए, अमेरिका हो गए, बाकी सारे बाहर के देश, उन्होंने अपनी जीवन शैली यहाँ पे डाल दी और वो हमारे हल्दी पे पेटेंट बना रहे हैं और अलग अलग चीज़ों पे पेटेंट बना रहे हैं। आजकल हमारे सब ग्रंथों को भी ले जाके उपनिषद वगैरह पे खुद के पेटेंट बना रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। हमारी सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि अपनी जीवन शैली को, पुरानी जीवन शैली को पहचाने, उसका इम्पोर्टेंस जाने और हमारे ट्रेडिशंस और त्योहारों को बचा के रखें, क्योंकि यही उसका आधार था। उसके ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन को हम देते थे ये चीज़ें, ठीक है। और मंत्रा होने चाहिए चैंटिंग में, ओम नमः शिवाय और देवी कवचम बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। तो अगर कहीं कोई बीमारी है तो आप उनको, या तनाव भी है कहीं भारी डिप्रेशन, तनाव, तो आपको उनको ओम नमः शिवाय चैंट करने को ज़रूर बोलना है, 11 से लेके 108 तक जो भी चाहे, मध्यम गति में। और दूसरा देवी कवचम करके रहता है, हम आपको लिंक भेज देंगे, फिर आप आपके लोगों को भेज सकते हैं आगे। देवी कवचम या तो सुने या तो याद करके खुद भी चैंट करें। चैंटिंग में मंत्र का वाइब्रेशन रहता है जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स में आता है, ठीक है ना, तो इससे ऑर्गन हीलिंग होता है। और बाकी सब तो ठीक है। तो हमें नई चीज़ें भी अपनानी है, टेक्नोलॉजी, और पुराने ट्रेडिशनल लाइफ को भी साथ साथ लेके चलना है, तभी अच्छे से होगा, ठीक है। तो एक ध्यान करते हैं छोटा सा, आंखें बंद रखते हैं, एक लंबी गहरी सांस लें। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिए अपना। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। एक गहरी सांस ओंकार के लिए। माइक बंद रखिए प्लीज। अपने वातावरण की ओर ध्यान ले जाएं। वातावरण में जो भी आवाजें हैं, जैसी भी आपकी परिस्थिति है अभी वातावरण की, गर्म ठंडी, उसे आप वैसे ही स्वीकार कर लें। ये हमारा प्राणमय कोश है। पंचकोशों के लिए हम अभी करेंगे ध्यान। वातावरण को जैसा है वैसे स्वीकार करें। अपने वातावरण के साथ आप शांति से हैं। वातावरण के साथ कोई संघर्ष नहीं।
एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अपने शरीर की ओर ध्यान ले जाएं। दोनों पैर, उंगलियों से लेके जंघाओं तक, कमर, पूरी पीठ, पेट, छाती, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन, सर और पूरा चेहरा। पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर की ओर ध्यान ले जाएं। आपका शरीर ईश्वर की एक अद्भुत देन है। अपने शरीर के साथ आप शांति से हैं, कोई संघर्ष नहीं शरीर के साथ। You're at peace with the body. Breathe in and breathe out. Attention to the thoughts. अपने विचारों की ओर ध्यान दे जाएं। विचार आते हैं और जाते हैं आसमान के बादलों की तरह। Thoughts come and go like the clouds in the sky. Good thoughts, bad thoughts. They come on their own and go away on their own. विचार अपने आप आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। आपको बस इन्हें दूर से बैठ के देखना है, बिना विचलित हुए। You just have to witness the thoughts come and go without getting disturbed. No resistance to any thought. किसी भी विचार के साथ कोई संघर्ष नहीं है। नहीं खाना तो दे गए, लेकिन पराठे के साथ अपने विचारों के साथ आप शांति से हैं। भेज दीजिए वो पानी भी। You're at peace with the thoughts. 9 बजे तक भेजना था, क्योंकि अपने मन से है। Breathe in and breathe out. एक देगा कि 2 देगा? 9 बजे तक भेजना था तो हमने कहा वो। Attention to the emotions and feelings. अपनी भावनाओं की ओर ध्यान ले जाएं। सुखद असुखद भावनाएं आती जाती रहती हैं जीवन में। इन्हें भी साक्षी भाव से ही देखें। Pleasant, unpleasant emotions and feelings come and go. पराठा तो एक ही दे गए ना? Just be a witness to them. दो पराठे बताए थे आपने, रोटी नहीं क्या? Breathe in and breathe out. You are peace. You are joy. आप ही शांति हैं, आप ही आनंद हैं। दही दही पानी एक ही बोतल लाया हूँ। एक बना रहे? हाँ। और क्या?
शन्नोऽस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Become aware of your emotions, feelings. भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of thoughts, विचारों के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of the body, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of the surroundings. Breathe in and breathe out. Slowly you may open the eyes. शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे से आंखें खोलें। देखो कैसा है। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। आपने बहुत अच्छा डिजीज के बारे, वायरस के बारे में भी बताया और आपने इसके क्योर के बारे में भी बताया, मॉडर्न ट्रीटमेंट भी बताया, प्रिकॉशन भी बताया, सिम्टम्स भी बताया और उसको प्राणायाम और एंशिएंट हमारे कल्चर से भी जोड़ दिया। आपने एक्सरसाइज भी कराया, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम इसमें हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर SM भट्ट, और एलोपैथिक के माने एम्स के डीन साहब हैं डॉक्टर उमेश बडानी, और फिर हेमोपैथिक के बेंगलोर के डॉक्टर हैं डॉक्टर अविनाश प्रसाद, कई तरह के डॉक्टर, डॉक्टर श्रद्धा जी, डॉक्टर संगीता जी, तो सो मेनी डॉक्टर्स आर हियर और हम उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को हम सुनना चाहेंगे। और श्रद्धा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेशन और आप हमको दीजिए जिसमें लोग अपने क्वेश्चन और आंसर कर सकें, बिकॉज टाइम इज नाउ 8:47, तो समय का भी ध्यान रखना है। अभी रमन जी भी, राजेश जी भी पूछने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले हम अपने चीफ गेस्ट ये बदानी साहब का कमेंट सुनना चाहेंगे, वो क्या बोलना चाहते हैं और आज का सेशन क्या हुआ, एंड व्हाट एडिशनल कंट्रीब्यूशन ही वांट्स टू ऐड in addition to whatever our both excellent speakers have said. So sir, आप क्या बोलेंगे? आप तो हमेशा हजारों पेशेंट को डील करते हैं, हमने आपके बिजनेस को देखा है, and I am grateful that you have come here. बदानी साहब, धन्यवाद। से भी स्वागत है। अभी भी हमारे आईसीयू में एक गुलेनबारी सिंड्रोम का पेशेंट भर्ती है। वो हमारा ही स्टाफ है जो वेंटिलेटर पे है, वो करीब 1 हफ्ता हुआ। तो ये पुणे में, तो महाराष्ट्र में पिछले 2-3 महीनों से काफी हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ भी एक पेशेंट है और भी जगह पे कुछ पेशेंट आ रहे हैं।
तो ये इसका ये पर्टिकुलरली पता नहीं है कि किस वायरस से होता है। ये एक सिंड्रोम है और वायरस जब इन्फेक्ट करता है, पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। अपना हाँ, तो वायरस कोई भी हो सकता है, 3-4 तरह के वायरस हैं और हमारा शरीर वायरस के गलत फहमी में हमारे नर्व को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, पेरिफेरल नर्व्स के श्वान सेल्स को बोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक तरह से मिस्ड आइडेंटिटी है वो जो गुलेनबारी सिंड्रोम करता है। इसीलिए जो मैडम ने बताई कि IVIG देते हैं और प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, तो हमारे शरीर में जो एक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है नर्व के अगेंस्ट में। उस ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही है, ट्रीटमेंट कोई वायरस के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छी चीज है कि ये मोस्टली रिकवरेबल है, लेकिन इसमें 6 महीना से 2 साल तक का समय लगता है रिकवरी होने में। और अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, जैसे अभी हमारे मरीज को हो गया है, तो वो बहुत दिन और लंबा इलाज होता है और काफी पैसा भी खर्च पड़ता है, क्योंकि ICU में रखना पड़ता है, वेंटिलेटर पे, और उसके अपने जो प्रॉब्लम है। तो ये गुलेनबारी सिंड्रोम मुश्किल वाला बीमारी तो है ही है, और किसको होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। इन्फेक्शन तो वायरस और बैक्टीरिया से होते रहता है बहुत लोगों को। अभी तो यही है, बाकी समय बहुत हो गया है और लोग कुछ इसमें जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। हमें सुनाई नहीं दे रहा है अमित जी आपकी बात। डॉक्टर श्रद्धा, वी वांट टू नो दैट क्या इसका मतलब ये GB सिंड्रोम का कोई इनडायरेक्ट कोरिलेशन कोविड से भी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ प्रचलित नहीं है, क्या नहीं है अब ये, लेकिन हाँ, ये जानने में आ गया अब इस डॉक्टर साहब से कि अब बिहार में भी 2 आदमी जिनको डॉक्टर साहब खुद देख रहे हैं और ये बहुत डेंजरस भी है, ये भी सुनने में आ गया। तो वी शुड टेक स्पेशल प्रिकॉशन। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर हमारे बीच में डॉक्टर SM भट्ट भी हैं। डॉक्टर SM भट्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के बहुत लोगों को इनसे फायदा हुआ है। तो डॉक्टर SM भट्ट, व्हाट एडिशनल इनपुट यू वांट टू गिव? Sir, actually, बदानी साहब, what I have experienced, first of all, good evening to everyone. सबसे पहले सबको नमस्कार. Whatever I have experienced about the COVID-19, we were studying about the protein chemistry, it's envelope, and it was kind of mystery because it was spreading, multiplying rapidly, and it was spreading in the whole body. And after the injection of the vaccines, the effect was doubled. Side effect was doubled. So because of vaccine, some antibodies were of course raised that suppressed the actual event of COVID-19, actual symptom of COVID-19. But other virus, we cannot deny that they are not fusing with this COVID-19. Whatever the rhinoviruses are there, RNA category viruses are there, they are actually integrating with that, and they are creating the new problems. And that you can see the effect in the Kerala, Pune, and some other part of the world, and also in our country. So what is the Ayurvedic remedy? In my experience, boosting the immunity is must. That could be done by the various strategy that well explained by the madam. And Afkuga you cannot deny. Madam well explained about the peripheral respiratory system and actually the oxygen requirement
a little bit high, and vitamin C requirement is very high in these days. Again, we can say we cannot rely on the nutritional component of the regular food. Rather than various nutraceuticals are there that can well supply the various components required for immunomodulating the uh, immune systems, because our immune system somewhere got weakened at least 10 to 30 times by the COVID-19. We cannot deny that. Everyone is facing that problem, and that could be one of the side effects that is emerging in the youngsters in the form of heart attack, sudden heart attack. They are going and getting the heart attack. Anyone is driving, getting the heart attack, dancing, and then getting the heart attack. So what you can say, as Dr. Badani well explained, that these are kind of respiratory, and in the various form also, in the various organs they are attacking, right? So earlier we have to take the step. Otherwise, when we are getting affected, then we cannot say that what will be the percentage of survival. That may take longer time. So we must follow the yoga in summary, and nutraceuticals time to time. If any symptom arises, we should consult doctors. And yoga and pranayam is the booster dose of the immune system. Thank you, sir. Very good, very good. In short, you both doctors, eminent doctors, have given very good advice in addition to our chief speakers has told, So, मैं डॉक्टर श्रद्धा से रिक्वेस्ट करूंगा केवल 2 बात करनी है सर। हाँ कह दीजिए, एक मिनट। डॉक्टर श्रद्धा जी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक सेशन डॉक्टर श्रद्धा मैम और डॉक्टर संगीता मैम और दें, जिससे हम अपने सारे ऑडियंस का प्रश्न का जवाब दे सकें। लेकिन अब इस बीच में नागेश जी बोल रहे हैं। नागेश जी बोलें, यू आस्क योर क्वेश्चन, एंड एसबी रमन जी इज आल्सो आस्किंग सम क्वेश्चन। हाँ श्रद्धा मैडम। शारदा मैडम, मे आई हैव योर अटेंशन? एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम एडिंग टू यू। जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा, यू हैव टच्ड ईच एंड एवरीथिंग। रादर मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक कॉमन अलर्ट आदमी हूँ, कॉन्शियस आदमी हूँ। आपने एक जो नया डायमेंशन जो मैं कह रहा हूँ वो ये है मैडम, ये सच भी है। मैं भी थोड़ा सा मंत्र भगवान को मानता हूँ, जो चांटिंग बोलते हैं वो करता हूँ। जैसे कल रात में ही 7 प्लेनेट एक लाइन में आ गए थे 7 से 8 बजे के बीच रात में। वो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम था। मैंने मंत्र जाप किया, उसका बहुत जो फायदा हुआ सो हुआ। तो शारदा मैडम, ये जो ऑकल्ट साइंस है, ये जो 2025 है, जो मतलब ये यूनिवर्स बोलिए, मदर नेचर बोलिए, गॉड बोलिए, जो बोलिए इसको, इसमें जो आसुरी शक्ति, निगेटिविटी जो हमारे नेचर का है, बहुत पावरफुल हो गया है। और ये भी इसलिए इसका इलाज नागेश झा का चांट कीजिए। अपना जो शारदा मैडम बोली उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, कोई भी फिक्स टाइम पे दैट विल पे। नंबर 2, केरल में विथ ड्यू अपॉलॉजी टू केरलाइट्स कोई है तो मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ। ये जो अनडिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन है, वहां पर निगेटिविटी बहुत है। लोग डेड बॉडी को अपने आंगन में ही बरी कर देते हैं। जो भी जहां रहते हैं वहां कोई अलग से कोई ऐसा जगह नहीं है। तो ये भी जो आई एम सॉरी, मदर नेचर का जो निगेटिविटी है वो भी केरल में थोड़ी सी अधिक है। और यही 2 बात कहनी थी। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। एसबी रमन जी भी, आप भी अपना जल्दी से पूछ लीजिए। लेकिन हम अगला शनिवार पूछना चाहते हैं। डॉक्टर सुधा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी ज्ञानवर्धन दिया, काफी ज्ञान बढ़ा। मैं इसमें एक छोटी सी बात, अपना अनुभव जोड़ना चाहता हूं कि कोविड के समय टाउन के कंपैरिजन में
हमारा रूरल एरिया काफी अनएफेक्टेड रहा। जितने ज्यादा डेथ केसेज टाउन के आए, शायद रूरल एरिया के उतने ज्यादा नहीं आए। इट डज मीन, ऐसा हम लोग को अनुभव हो रहा है कि जमीन और मिट्टी से, नेचर से मिले होने के कारण कोविड ने भी अपना प्रभाव कम किया उस पर। तो एक हमने अनुभव किया। अब मैम से छोटी सी जानकारी मैं लेना चाहता हूं कि हार्ट के डिजीज के जो सफरर हैं, योगासन का कौन सा योगा ऐसा होगा जो नियमित रूप से किया जाए और उनको दोबारा अटैक आने की संभावना न हो? पहले तो आप सबका जितने लोग सबने बात की उनको सबका धन्यवाद। और स्वागत में मैं कहना चाहूँगी कि हार्ट के लिए आप वैसे किसी भी चीज़ के लिए नाड़ी शोधन 15 मिनट। नाड़ी शोधन आता है ना सबको, जैसे पहले अनुलोम विलोम बोलते थे, लेकिन उतना जोर से नहीं लेना है। पहले तो दोनों नासिकाओं से सांस छोड़नी, फिर लेफ्ट से आपने ली, हल्की राइट से छोड़नी। इसमें आप लेके समझो 4 गिनती तक ले रहे हैं, 4 गिनती तक रोक के रखना, 4 गिनती तक छोड़ना, फिर 4 गिनती तक बाहर छोड़ के रुकना। अगर 15 मिनट तक नाड़ी शोधन करते हैं तो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। ठीक है, 15 मिनट बहुत लंबा समय है। अगर नहीं जमता है किसी को तो 5 मिनट की बात करते हैं। ठीक है, एक ये है। दूसरा, भ्रामरी भी कर सकते हैं और शीतली प्राणायाम। अगर हार्ट की बीमारियां गर्म पित्त बढ़ने से हो रही है तो फिर शीतकारी प्राणायाम आपको देखना पड़ेगा किस वजह से हो रही है। लेकिन नाड़ी शोधन सबसे न्यूट्रल है, जो आप कभी भी किसी को भी 15 मिनट, इवन गुलेनबेरी सिंड्रोम के अगर शुरू के आते हैं उनको अगर आप भस्त्रिका और नाड़ी शोधन, मैडम आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, सॉरी। उनको अगर भस्त्रिका और नाड़ी शोधन सिखा दे तो उनमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, नाड़ी शोधन 15 मिनट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे बीच में उमेश जोशी जनाब हैं। उमेश जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा, थैंक यू अमिताभ जी। और आज जो ये डॉक्टर श्रद्धा जी ने और डॉक्टर संगीता जी ने जो हमें यहाँ पे लेक्चर दिया और बहुत ही एक्सरसाइज कराई, यही इस समय बहुत आवश्यक है। और आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना अच्छा आपने हमें बताया। और सही बात तो ये कि अगर हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो अब वो इमोशनली बैलेंस अगर हम हैं तो हम इस तरह के वायरस के अटैक को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम वायरस का मुकाबला करेंगे। और आप दोनों ने बताया कि एनर्जी का सोर्स क्या है और किस प्रकार से हम पॉजिटिव रहें। और मैं समझता हूँ कि दवाइयों से बहुत ज़्यादा ये है कि अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, अपने बॉडी को कंट्रोल करें, तो इस तरह के प्रोग्राम्स अभी आप दोनों से फिर रिक्वेस्ट करें। तो अगर इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग करेंगे या सीखेंगे, तो अगर हमें कोई बीमारी नहीं भी है तो भी हम आगे बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। दोनों बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ उमेश जी, आपने जो सही कहा, अभी जो सर बोले कि शहर गांव वाली बात, मेरे अपने ज्वाइंट फैमिली में भी 2 हमारे भाई, they have left to the heavenly abode. I salute their holy spirit. तो टाउन में, शहरों में निगेटिविटी बहुत है। निगेटिविटी में का मैं माने समझा दे रहा हूँ भाई, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना, ये जो भावना होती है, विचार होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये गांव में ये सब थोड़ा सा कम है। तो जो 2 स्वर्गवासी हुए, ये हमारे नागेश झा नहीं बोल रहा है, ये जो हमारे फैमिली के लोग बोल रहे हैं, जो भी गए वो लोग अपने आपस में बहुत ईर्ष्या किया करते थे और लोगों से, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मेरा एक पर्सनल ये फोकस है, आपकी भावनाएं पॉजिटिव होनी चाहिए। और यदि आप हमेशा ईर्ष्या करते रहेंगे, जैसे हमारा पड़ोसी कुछ इंप्रूव किया तो खुश होइए, चलो भाई अच्छा हुआ, इंस्टेड ऑफ कि अरे भाई वो हो गया मैं क्यों नहीं हुआ, तो अब ये भी आपको नीचे डालता है। तो शहरों में निगेटिविटी अधिक है, गांव में कम है। और अभी जो उमेश जी बहुत अच्छी वाले, भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भावना से ही आपको भगवान भी मदद करेंगे और कोई मदद नहीं कर पाएगा। थैंक यू।
बहुत अच्छा। अभी हमारे बीच में जयश्री हैं, अभय कृष्णा जी हैं, विनय शुक्ला हैं, अमित जी हैं और हमारे HFWTC हैं। बहुत लोगों सभी, अब डॉक्टर अविनाश प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर हैं। तो ये सारी चीजें, सभी लोगों को बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी मन शांत नहीं हुआ श्रद्धा साहब की बात को सुन करके। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगला रविवार भी आप हमको दें, जिससे हम लोग अपने मन की बात पूछें। और वास्तव में बाय गॉड बोलते हैं कि आपके बताने से बहुत लाभ हुआ है और कॉन्ट्राडिक्शन तो एकदम नहीं आया है। इवन एम्स के डॉक्टर मैंने आपको अभी जरा आप नीचे जाके दवाई ले आना, हमारी तबीयत खराब हो रही है अब। राम विलास जी, दवाई हमारी ले आना यार, हमारी तबीयत खराब हो रही है। पता नहीं तो अगली बार को हमारा जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। बड़ी मेहनत पड़ती है देगी डॉक्टर श्रद्धा और डॉक्टर संगीता। अमित जी, आपका और सभी का बहुत धन्यवाद, हम दोनों की तरफ से, संगीता जी की और मेरी तरफ से। और संगीता जी भी बोलेंगे आपसे। वैसे हमारा काम मन को शांत करने का रहता है, तो हमारे साथ मन अशांत नहीं रखिए कभी। सेशन तो हम कर लेंगे एक बार। संगीता जी, नहीं मैडम, आपने मन को शांत कर दिया, आपने एक्सरसाइज करा के, भाषण देके। मैं आपकी बात को मैं क्या करूं, एक एक चीज मेरे दिमाग में चिपक गया। जो मेरा जितना था सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रहा था। आप बोलती जा रही थी, मैं सुनता जा रहा था। ऐसा लगा कि स्वर्ग लोक से ही कुछ आ रहा है, अमृत का पात्र हो रहा है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। संगीता जी, आप बोलिए। संगीता जी बोलेंगे। Thank you everyone. Thank you Amitabh ji for giving us the opportunity to meet all of you. Thank you. तो मैम, श्रद्धा मैम बता नहीं रही हैं, आप हाँ तो बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आप आपस में दिन तय कर लीजिए, दिन समय। और मैं एक चीज कहना कि जो सुदर्शन क्रिया है आर्ट ऑफ लिविंग की, आप इसका कोर्स जरूर करिए, ठीक है ना। 4 दिन का रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सब जरूर करिए। बहुत जीवन में बहुत परिवर्तन है, हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया है, हम उस अनुभव से आपको कहें। बहुत इस नाव में हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम। और मैं डॉक्टर SM भट्ट से कहूँगा कि हमारे इतने बड़े बड़े विद्वानों को, इतने आध्यात्मिक लोगों को आप एक अमृत वाणी से, क्योंकि चंद्रेश्वर खान है नहीं, आप उनका स्वागत करते हुए उनकी विदाई करिए। और फिर उनसे अगले रविवार को आने का रिक्वेस्ट भी आप भी कर दीजिए, क्योंकि बडानी साहब भी चले गए और डॉक्टर भट्ट सुटेबल लग रहे हैं, जोशी जी भी हैं। तो डॉक्टर भट्ट एक बार इन लोगों को अमृत वाणी से क्लोजिंग करिए हम लोगों का। जी सर, धन्यवाद। डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर मैडम ने जो अभी प्रेजेंटेशन दिया, उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नई नई जानकारियां मिली। और मॉडर्न मेडिसिन तो है ही है, लेकिन जो आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस है वो कोविड-19 के बाद ही आया है। तो मैडम अभी 45 मिनट में तो हम लोग 1 घंटे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत कुछ बता देंगी। तो सर्टेनली बनता है कि एक संडे मैडम और दें और गहराई से लोग सीखें, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं, इस बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इससे उनको लाभ भी हो रहा है। तो मैं भी बहुत कुछ सीखा मैडम, थैंक यू सो मच। और अमिताभ जी तुम्हारे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लाइट ऑफ इंस्पिरेशन। तो ठीक है, थैंक यू सर। मैडम देंगी, हम लोग ने इतना अच्छा अभी प्रेजेंटेशन दिया मैम ने, तो जरूर अगले संडे उम्मीद करते हैं कि मैडम का एक लेक्चर और होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और हमारा इसका रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में सभी को मिल जाएगा और इसको स्टोर करके हम लोग रखेंगे। इतना बहुमूल्य ज्ञान हम लोगों को मैडम ने दिया, सभी को प्रणाम। हम लोग फिर अगले इतवार को मैडम को सुनेंगे। सैटरडे को हो सकता है मैं फ्लाइट पे रहूं, तो संडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद और
अप्रूवल के लिए भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू और सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, धन्यवाद सादर प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा। थैंक यू और वेरी डॉक्टर मच। संगीता, डॉक्टर संगीता हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं 2 बार, लेकिन वो हमारी गुरु हैं आज, हमने स्वीकार। अभय कृष्ण साहब, हम लोग आपका भी सुन। हमारा दिमाग जो है ना थक जाता है साला। वहां पे पता नहीं लोग पढ़ाते कैसे हैं, हम तो बिल्कुल थक जाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते ना थक जाते हैं बिल्कुल। और एक से एक लोग सवाल पूछते हैं ना,